Okay, so in the last class we have seen has a relationship, right? That means if a class has got a reference of another class, right? Then we say that that class has the object of that class. For example, we say if this is a room, right? Room has four walls. ठीक है. So if wall is a class which has some attributes like length, width, right? Bricks, types of tiles, and all those things. So we can say the room has four walls. ठीक है. Has it doesn't means only a single element, right? It's just a relationship. Otherwise, a room has four walls. And when we say that, we we are actually trying to say that the room is composed of four walls, right? So there is a composition relationship. There is a composition relationship which is realized as a has a relationship. जब आप दो एंटिटी के बीच अगर लाइन खींच के उसमें जो लिखते हैं ना, वहां पे जब लिखेंगे तो हैज अ रिलेशनशिप लिखेंगे. ठीक है. जैसे अगर अगर आप वो डायग्राम बनाए, ईआर डायग्राम बनाए, तो ईआर डायग्राम में क्या करते हैं कि मतलब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी और एंटिटी के अपोजिट आप बताते हैं कि कितने एलिमेंट, जैसे फोर है ना. तो रूम के अपोजिट बताएंगे फोर वॉल्स, वॉल्स उधर रहेगा और वहां पे लिखा होगा हैज ए रिलेशनशिप, राइट. तो दिस इज बेसिकली कंपोजिशन. ठीक है. तो अ क्लास कैन बी कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ primitives एंड अ नंबर ऑफ अदर एंटिटीज. ठीक है. तो जब आप बोल के देख रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि डिपार्टमेंट हैज डॉक्टर्स, यानी अ डिपार्टमेंट में हैव अ लिस्ट ऑफ doctors, a list of doctors. The list could be maintained either in arrays, simple array, plain array, or it could be maintained by another data structures available in Java libraries. Okay. So similarly, this is a kind of a has relationship. Then we have got the inheritance relationship, right? Inheritance means what? There is a parent class and there is a child class, right? Child class is extended from the parent class, right? That means the base functionality lies in the parent class and the class provides an extension to the base functionality, the behaviors, right? Correct? So if I say the child class is a, a specialization, child class is a specialization. Like for example, if I say parent class is animal class, and the child class could be a lion class, could be a cat class, could be say a bird class, a crow, for example. So we are saying that animal is just an animal. I'm trying to abstract everything over there, right? All the animals. Whereas lion, bird, crow, or for example cow or goat, these are specialized or a specific kind of animals, right? Yeah, clear है? So when we say the child class has specialization, we have a term for parent class also in the same context. That is generalization. Generalization, right? When we say animal, it's a general term. So that's generalization. And when we see which specific animal, that's a specialization. If we try to break it down, the hierarchy into multiple levels, then say for example, animal is the supermost parent class. Then there could be say wild animals, domestic animals, birds, water, say aquatic animals, right? So these are second level of specialization. Then again in the wild animals we can say tiger, lion, elephant, and so on, right? So that's again another layer of specialization. So as we proceed from the parent class to the child class, we are moving towards specialization, and as we proceed from the child class towards the parent classes, we are moving towards generalization. Clear hai? So this means that if we want to extract a common code from all the immediate layer of the child classes and put it in the parent class, so that is for the same purpose, right? To have
all the immediate child classes having the same common functionality. अगर आप कोई कॉमन फंक्शनलिटी को निकाल के एक लेवल ऊपर करना चाहेंगे ताकि कोड रिपीट ना हो, राइट, कोड रिपीट ना हो, वो बिहेवियर सारे, फॉर एग्जांपल इफ आई से eat behavior for an animal, ठीक है, so whatever kind of animal it be, every animal eats, right, so I can take eat method from every animal and put it in the topmost class, which is the animal class, right, makes sense. But if I say wave tail method, right, not every animal has tails. First of all, birds, fishes, they have different terms. For example, some animals may not have tail at all, right, so wave tail method may not make sense to take it to a more generalized level, so we may leave it to the specialized level itself. तो जो पेरेंट क्लास में जो चीज हम मूव करते हैं वो चीजें मूव करते हैं जो बिहेवियर सबके लिए कॉमन होती हैं अपने इमीडिएट चाइल्ड क्लासेस के लिए, करेक्ट। ऐसे ही होता है ना, पेरेंट से फादर से कुछ चीजें आप इनहेरिट करके चाइल्ड के पास आती हैं, राइट। अगर 2-3 चाइल्ड हैं, मान ली प्रॉपर्टी है, तो 2-3 चाइल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो, राइट, फाइन। तो इसका मतलब जो जिस कॉमन चीज को आप शो करना चाहते हैं उसको पेरेंट क्लास में मूव कर देंगे, और जो चीज स्पेसिफिक आप उसमें ऐड करना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास में डाल देंगे, ठीक है। इसीलिए चाइल्ड क्लास को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द जनरलाइजेशन। एंड वी ऑल्सो से दैट चाइल्ड क्लास इज एन एक्सटेंशन, वी ऑल्सो से दैट चाइल्ड क्लास इज एन एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि अगर पेरेंट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बिहेवियर आपने ऐड करे हैं जो कि सबके लिए कॉमन है, चाइल्ड क्लास को जब आप स्पेशलाइजेशन बनाएंगे तो उसमें कुछ नए प्रॉपर्टीज और बिहेवियर आप एक्सटेंड करके ऐड कर देंगे, राइट। so they are extensions, right. So for example, let me create some class. For example, if we talk about the phi class, right, so let me create a class phi, new class phi. So what could be the general attributes of the phi class? In general, all kind of phis, you can say private string phi detail, right. Then construction phi could be a type of phi, that will be a child class, right. We can see phi amount, ठीक है, private int phi amount, private, और ये फ्लोटिंग मिलना चाहिए ना, टैक्सेस, और कुछ ये रिसीव नंबर, और क्या बोल रहे हैं आप, ऑनलाइन ऑफलाइन, अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट, अच्छा, एक तो आपने कहा कि मोड ऑफ पेमेंट, बूलियन पेमेंट मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन, 2 ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ कमेंट डाल देते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। आपने क्या बताया था एक और चीज, रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर कुड बी स्ट्रिंग receipt number. Why we are putting private everywhere? To make sure we are following the data hiding principle, ठीक है। और कुछ जो फी में जा सकता है,
enough I think है. We just generate the getter and setters and finish it. ठीक है ना, याद है ना, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है. Select all. ठीक है, this class is ready. Now if we talk about this consultation fee, तो इसमें क्या होगा? एक फी तो हमने ऊपर भी डाल रखा है ना, वो डाल रखा है. लेकिन आप देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन की थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडेड फीस होती है ना. तो लेट्स से हम ऐड करना चाहते हैं, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल. So I'm not looking for how much it makes sense in the real business, I mean environment, but just to understand it. Private float specialization fee. ठीक है, तो जब हम मेन फी टोटल फी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी स्पेशलाइजेशन फी से ऐड करेंगे बेस फी को. हेलो जी, क्लास बताइए. क्या बात कर रही है? अरे ले लियो. अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए खुश, ठीक है, खुश लेके चलना पड़ेगा इसके लिए. ठीक है, ठीक. गैस ठीक है यहाँ तक. और बताइए क्या ऐड हो सकता है इसमें कंसल्टेशन फी में, कुछ और एनीथिंग एल्स? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो वो मेडिसिन मिलती हैं, जो मतलब डॉक्टर लिख के देता, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना, तो उसका वो बिलिंग तो करते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, तो उस मेडिसिन को क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? बस वो लिख के दे देते हैं, कुछ नाम होता है उसका? नहीं फैमिलियर है? अच्छा, हम ऐसे कर लेते हैं, चलो समझ नहीं तो हमको है ना. प्राइवेट फ्लोट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं आ रहा है, सेंस नहीं बनाता है. ठीक है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ एक एट्रीब्यूट तो डालेंगे नहीं, कुछ और भी सोचना पड़ेगा हमको. वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक एन एग्जांपल. और कुछ है तो बताइए थोड़ा सा कुछ. अ, वो हो सकता है ना, कन्वीनियंस फीस करके, या तो जीरो होगी या कॉस्ट होगी, राइट? एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं, या तो जीरो होगी या फिर एनी अमाउंट होगी, है ना. अगर वो वॉक इन है जैसे, ठीक है, तो फिर ऑनलाइन नहीं कराया उसने तो फिर वो जीरो अमाउंट होगी, अदरवाइज से 20 रुपीज चार्ज कर लिया आपने. ठीक है, चलिए दो का तो बना ही देते हैं पहले. अभी तक क्या फी में और कंसल्टेशन फी में कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुई है?
कोड को देख के बताइए, फी क्लास में और कंसल्टेशन फी क्लास में कोई रिलेशनशिप है अभी तक? नहीं है, इंटरेस्ट अभी तक बना नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर बनाया नहीं है। सी प्लस प्लस में क्या करते थे आप, ये लगाते थे, राइट, है ना। यहाँ पे हमारे पास वर्बोस कीवर्ड है, एक्सटेंड्स सी क्लास, राइट, वर्बोस भी है, साथ में ये आपको बता भी रहा है कि कंसल्टेशन फी में कुछ एक्सटेंशन है। दैट मीन्स देयर आर फ्यू extended elements, attributes and behavior, right, apart from what we are inheriting from the fee class. ठीक है। Now let's try to make a instance of the class. Say for example we go to the uh, appointment manager, ठीक है, and when the appointment is booked, let's say the patient walked in and we want to charge the fee for him. So there are three ways for charging fee. One is that we can see fee consultation fee is equal to new fee. We can say this way, ठीक है, or we can say fee consultation. Mistake थी, consultation fee say 1 लगा देते हैं, variable we cannot have two variable with the same name, so 1 is equal to, rather fee we say consultation fee, consultation fee, new consultation fee, ठीक है। ये दोनों ही तरीका है, which is suitable in this situation, which is suitable, which is better? हाँ, दूसरा वाला बेटर है, ये रिलेवेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसल्टेशन फी एज ऑफ नाउ, नॉट अ जनरल फी, राइट, and in fact the general fee doesn't make sense as well, because that is not a specific type of fee, it's a fee, and independently it doesn't have any sense, right. It has to be a consultation fee, it has to be a registration fee, it has to be say for example medical test fee, right, or something that makes sense. So we have made the fee class just in order to take the common behavior and attributes a level up, so that that code is not repeated. यही पर्पस था ना, अदरवाइज फी क्लास का अपना में कोई मतलब नहीं बनता है, एंड वी डू नॉट वांट टू मेक इवन द ऑब्जेक्ट ऑफ द फी क्लास बिकॉज इट डजंट मेक द सेंस, ठीक है। इवन दो वी हैव मेड फी क्लास एज अ कॉन्क्रीट क्लास मतलब नॉर्मल क्लास जिसमें कोई भी अब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर नहीं हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट पेरेंट क्लास, ठीक है। यहां दो जगह तक, यहां तक क्लियर है, राइट। हाउ अबाउट इफ आई राइट फी if we write this way, क्या एरर है, कंपैरिजन तो है नहीं कहीं पर, अच्छा ऐसा होगा, लेट्स ट्राई टू सी, ठीक है, अब इसको फिगर आउट करते हैं। तो हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्मेट है, अब वी हैव टू चूज which of the lines are the best suited for us, right, ठीक है।
अब ऐसे देखो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में हम अब जाने वाले हैं, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, क्लास से सी record, p record, right? And that has, say for example, a method print all fee amount for the day। मैं बहुत लंबा लिख रहा हूँ ताकि वो क्लियरली आपको समझ में आए किस पर्पज के लिए मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या पास करूँ एज अ पैरामीटर, ये प्रिंट कर रहा है यानी कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा है, राइट। तो हम इसको पब्लिक बना के रिटर्न टाइप इसका वर्ड बना सकते हैं, ज्यादा क्लियर है। अब इसमें पैरामीटर क्या पास करें भाई, प्रिंट करने के लिए तो चाहिए ना कुछ, क्या चाहिए, किसका, फी का, कंसल्टेशन फी का, किसका, कंसल्टेशन फी का। अच्छा ठीक है, कंसल्टेशन फी का सी फी एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, राइट। एंड व्हेन वी वांट टू प्रिंट द अमाउंट, वी जस्ट से सी फी डॉट गेट फी अमाउंट प्लस गेट, सॉरी, सी फी डॉट, हाँ देंगे अभी, अब पहले एक बार समझ लो इसको क्या क्या आ रहा है इसमें। गेट कन्वीनियंस फी, राइट, प्लस फी डॉट गेट टैक्सेस। ये सब मिला के तो फी बनेगी ना, अमाउंट, टोटल अमाउंट तो ये सब मिला के बनेगी। अच्छा अब इसमें बताइए जो गेट फी अमाउंट है ये किस क्लास का पार्ट है, फी का है। टैक्सेस किसका है, टैक्सेस है, फी अमाउंट है, राइट। दोनों फी क्लास का है। कन्वीनियंस फी हमने किसी तरह से ऐड करा है कंसल्टेशन में एक और भी ऐड करा था हमने, स्पेशलाइजेशन फी, राइट, वो भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। प्लस सी फी, सॉरी, सी फी डॉट गेट स्पेशलाइजेशन फी, राइट। तो ये चार फी बन करके हमारी टोटल अमाउंट बन रहे हैं, जिसमें से दो फीस एलिमेंट और उनके गेटर मेथड जो हैं वो किसमें है, पेरेंट क्लास में, सी क्लास में है, और दो चाइल्ड क्लास के अंदर है, राइट। दो वहां से कॉल हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने ये भी देख लिया कि पेरेंट क्लास से जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स के अराउंड जो बिहेवियर है वो इनहेरिट होकर आए हैं, क्योंकि बिहेवियर ही इनहेरिट होकर आएंगे, क्योंकि पब्लिक बिहेवियर ही है, जो एट्रीब्यूट्स है तो प्राइवेट है, राइट, उसको हमने हाइड कर रखा है, तो वो इनहेरिट होकर नहीं आएंगे, विजुलाइज नहीं होंगे। उनके अराउंड जो मेथड्स हैं, गेटर सेटअप मेथड्स हैं, उनको हम यूज करके एसेस करेंगे, वो इनहेरिट होकर के हमारे पास एसेसिबिलिटी के लिए रहेंगे। ये लाइन मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी ना तो सेमीकोलन लगाया है ना इसको प्रिंट स्टेटमेंट डाला है अभी, ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस करने के लिए चारों फी को मैंने यहाँ पे लिखा था। अब अगर इसको मैं डालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर इस चीज को मैंने कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स रादर, एंड कंट्रोल वी with a message fee collected for plus C fee dot get, है अच्छा छोटा है,
get receipt number plus is टोटल अमाउंट आ जाएगा, राइट, करेक्ट। तो नीचे ला दे ताकि आपको रीडेबिलिटी आपके पास रहे। ये क्लियर है भाई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है गाइस? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्लियर है ना? है? अब एक नया क्लास ऐड करते हैं। इन पेशेंट फी, एडमिट हो गया स्टूडेंट, वो पेशेंट आपका, ठीक है। इन पेशेंट आउट पेशेंट ऐसे बोलते हैं ना, इन पेशेंट फी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट विल एक्सटेंड फ्रॉम फी क्लास। पहले तो आया होगा, कंसल्टेशन हुआ होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसको फॉरन एडमिशन वगैरह प्रिस्क्राइब हो गई होगी, राइट। या ये भी हो सकता है इमरजेंसी में आया हो, तो इमरजेंसी फी भी अलग एक क्लास बन सकती है, राइट, करेक्ट। तो लेट्स से इट्स इन पेशेंट फी। सो डिपेंडिंग अपॉन द रूम रेंट, किस तरह का रूम है, सिंगल ऑक्युपाइड है, डबल ऑक्युपाइड है, फोर ऑक्युपाइड है और जनरल है, जो भी जिस तरह का है उससे हमारा रूम रेंट होगा, राइट। प्राइवेट फ्लोट रूम रेंट, राइट। रूम रेंट के हिसाब से सब कुछ बढ़ जाता है। डॉक्टर की पर डे की विजिट के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, सर्जरी के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, रूम जिस तरह का रूम आप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर होती है तो जो भी कॉस्टिंग आती है आपके एक बार आप एडमिट हो गए उसके बाद, तो वो सारी डिपेंड करती है कि बेसिक जो रूम रेंट है उस पर कैलकुलेट की जाती है, उसके ऊपर, राइट राइट। कभी किसी को एडमिट किया है तो जब आप एडमिट करने ले गए होंगे, अगर सिंगल ऑक्यूपाइड रूम आप चूज कर रहे हैं, है ना, जैसे इंश्योरेंस क्लेम है आपके पास, सिंगल रूम का क्लेम है आपके पास, सिंगल रूम चेंज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी जो सर्जरी चार्जेस होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट डबल होंगे देन 4 पीपल ऑक्यूपाइड रूम। समझे, इतना डिफरेंस हो जाता है। ओटी तो ले आके होती है ना, आप एडमिट तो करेंगे ना पहले, 4-5 दिन आदमी एडमिट रहता है, बीच में ओटी में जाता है, तो जो जो आपकी पूरी बिलिंग बनती है ना, अगर बिलिंग आप उठा के देखेंगे, मैंने जो भी कराया है, मैं मुझे उसका अंदाज है, तो वो सारा डिपेंड करता है उसी के ऊपर। इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब रूम रेंट के हिसाब से फिर बाकी चीजें अपने आप मॉडिफाई हम कर सकते हैं बाय गेटिंग द रूम रेंट, एंड देन वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग एल्स, एवरी प्रोसीजर चार्जेस जितने भी आते हैं, ठीक है। रूम रेंट हो गया, और बताइए। पेशेंट नेम तो पेशेंट क्लास के अंदर जाएगा ना बेटा। कौन सर्विसेज? सर्विसेज चार्जेस, जो भी सर्विस चार्ज हो, चाहे वो वीआईपी हो चाहे नॉन वीआईपी हो, जो भी हो, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। प्राइवेट फ्लोट सर्विस चार्जेस, जो फूड प्रोवाइड करते हैं उसमें इंक्लूडेड होता है कि एक्सक्लूडेड होता है? इंक्लूडेड होता है। चलो चलो, मान लो दो चीज एक्सटेंशन हो गई हमारे पास है। गवर्नमेंट को छोड़ दो यार, गवर्नमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, गवर्नमेंट वाले सॉफ्टवेयर ही नहीं बनवाएंगे आपसे, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर बनवाएंगे क्या? अब तो प्राइवेट वालों के लिए बना रहे हैं। वो तो सब चीजें चार्जेस रख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दो दो फील्ड मान लेते हैं। अच्छा, सोर्स, जनरेट, सिलेक्ट ऑल, गेटर एंड सेटर। अब नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, हमने एक नई क्लास ऐड कर दी which again extends from the fee class. Now we have a problem. And what is the problem? If we go back to our class which is the fee record class, now if I want to print
ऑल फी अमाउंट फॉर द डे, तो उस दिन कुछ लोग एडमिट भी हुए होंगे, उनकी फी रिकॉर्ड भी प्रिंट करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करें? हम्म? बताओ। फी क्लास एक है, जो पेरेंट क्लास है एक ही है। अब दोबारा से फिर से एक और मेथड बनाए, कैसे करें बताओ? अब इसका मतलब जितनी तरह की फीस हम क्लासेस चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे, उतने सेपरेट मेथड हमको देने पड़ेंगे, राइट? दैट इज समथिंग विच इज नॉट गुड। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जब हम अपॉइंटमेंट मैनेजर क्लास के अंदर थे, तो हम देख रहे थे कि कंसल्टेशन फी के ऑब्जेक्ट को फी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल हैंडल कर सकता है, ठीक है? यानी फी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, सिंपल टर्म में कहें तो कर सकता है। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसे कहें कंसल्टेशन फी, है ना, फी फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू न्यू फी, दिस इज गोइंग टू गिव अ कंपाइलेशन एरर। क्या कह रहा है ये? टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फी टू द कंसल्टेशन फी। उल्टा पॉसिबल नहीं है। कैसे हम याद रखेंगे उल्टा पॉसिबल नहीं है? अच्छा, ज्यादा सेंसिबल तरीका बताता हूँ, जिससे आप इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पे लगेगा, और इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। यू नो दैट कंसल्टेशन फी इज अ फी, ठीक है? एक्सटेंशन कंसल्टेशन फी है, कंसल्टेशन फी इज अ फी, इन पेशेंट फी इज अ फी, रजिस्ट्रेशन फी इज अ फी, और मेडिकल टेस्ट फी इज अ फी। तो ये सारे क्या है? फी है। बट वी कैन नॉट से अ फी इज अ मेडिकल टेस्ट फी फॉर श्योर, इट कुड बी ऑफ एनी टाइप ऑफ फी, राइट? ठीक है? उल्टा कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको फील होगा, राइट? लेकिन अगर आप सही कहते हैं, जैसे चाइल्ड क्लास को कहते हैं इज अ पेरेंट क्लास, सो दैट मेक सेंस। अ लॉयन इज अ एनिमल, अ कैट इज अ एनिमल, राइट? बट एनिमल इज अ लॉयन, एनिमल इज अ कैट, डजंट मेक दैट सेंस। ठीक है? क्लियर आ रही बात? तो जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच लग रही है, वो बन रही है, क्या बन रही है? इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप है, और उसको हम नोटेशन जो देते हैं इज अ रिलेशनशिप से देते हैं, इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है? तो जहां भी आप देखें कि इज अ रिलेशनशिप बन रही है, वहां पे ये समझ जाएं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस का सीन आ रही है, ठीक है? और जहां पे हैज आपको लगाना पड़े, जैसे क्लासरूम हैज 4 वॉल्स, तो आप समझेंगे क्लासरूम क्लास के अंदर 4 वॉल के इंस्टेंसेस हैं, ठीक है? वहां पे इनहेरिटेंस रिलेशनशिप नहीं आएगा। हम ये नहीं कहेंगे वॉल एक्सटेंड्स क्लासरूम, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज वॉल इज अ डिफरेंट थिंग एंड अ क्लासरूम इज अ डिफरेंट थिंग। वॉल इज कंपोज्ड ऑफ हॉल, क्लासरूम इज कंपोज्ड ऑफ वॉल, दैट इज ओके, ठीक है? कंपोजिशन रिलेशनशिप है, ठीक है? तो सेंटेंस में बोल के देख लीजिए, इधर आ रहा है या हैज आ रहा है, उससे आप डिसाइड कर लेंगे आसानी से, ठीक है? तो एक बात क्लियर हो गई कि हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, राइट? So let's go back to our fee record class. Instead of consultation fee, if we just say fee, ठीक है? अब यहाँ पे जो लैंड होगा, चाहे वो कंसल्टेशन फी लैंड हो, चाहे वो आपका इन पेशेंट फी हो, या किसी भी तरह की फी हो, उन सबको ये हैंडल कर पाएगा सी फी रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है?
eventually we are trying to write one method that should fit all the child classes, but there is a limitation. लिमिटेशन क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपाइलेशन की एरर आनी शुरू हो गई है ना। ये कंपाइलेशन की एरर क्या कह रही है, ये जो मेथड है कन्वीनियंस फीस है और स्पेशलाइजेशन फीस है, इनको क्या बोल रही है कि ये अनडिफाइंड है फॉर द टाइप फी। क्यों ऐसा हो रहा है, ये फी क्लास के अंदर नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन के अंदर है या एक्सटेंशन के अंदर है कह सकते हैं हम, है ना। जब स्पेशलाइजेशन के अंदर है तो हम जनरलाइजेशन के रेफरेंस वेरिएबल से इनको इन्वोक नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशन ये है कि अगर इस टाइप के हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं जिसमें सुपर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं टू accommodate all child classes, we are forced to either limit our call to only the methods which are available in the parent class, ठीक है। हाँ। ये बात समझ आई। or else we will have to do an explicit cast, or else we will have to do an explicit cast। तो ये मैं दिखा दूंगा, पहले इसको समझिए। देखिए एरर चली गई, कंपाइलेशन चली गई ना। अब हम फी रेफरेंस वेरिएबल वाले मेथड में किसी भी टाइप का फी पास करें, सारे रिसीव होंगे, होने चाहिए, है ना, होंगे इनफैक्ट। बट लिमिटेशन ये हो गई कि अब हम जो मेथड्स कॉल करेंगे वो रियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं कॉल होगा, वो इस रेफरेंस वेरिएबल को देख के कॉल होगा कि ये रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या क्या मेथड्स हैं। यानी हम जनरलाइजेशन वाले मेथड्स ही कॉल करने के लिए रिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशलाइजेशन वाले मेथड अब हम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वी गो फॉर explicit cast। So there are two kind of casting, one is implicit cast and the other is explicit cast, right? For example, if I say byte b is equal to 7, ठीक है, int x is equal to 0, right, x is equal to b, do I need to convert b explicitly, did I need to convert b explicitly, क्या मुझे अलग से कन्वर्ट करना पड़ा कि बोल करके कि b को कन्वर्ट करो इन टाइप में क्योंकि डाटा टाइप मिसमैच है, नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक सेम टाइप के न्यूमेरिकल टाइप के नॉन डेसिमल न्यूमेरिकल टाइप के एक छोटे बकेट से हम बड़े बकेट में चीज को डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ इम्प्लिसिट कास्ट, राइट, करेक्ट। वाइस वर्सा होता, से फॉर एग्जांपल ऐसा होता b इज इक्वल टू x, तब क्या होता, तब ये देखिए यहाँ पे आपको कंपाइलेशन की एरर मिल रही है और एरर क्या कह रहा है, type mismatch cannot convert from int to byte, why, even though the types are same, they both are non-decimal numeric values, but I am trying to put something which is in the big bucket to a smaller bucket and there is a chances of spilling out। कंपाइलर नहीं देखेगा कि s की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 7 है, दोनों की दोनों 2 बाइट में भी आ जाएंगी, ये नहीं देखेगा वो, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ये जो वेरी करे, हो सकता है कल आप वैल्यू चेंज कर दे, फिर क्या होगा, राइट। तो कंपाइलर ये देखने नहीं जा रहा है, ठीक है, वो ऑल पॉसिबिलिटीज को लेके चलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप फोर्सफुली चाहते हैं कि s की वैल्यू को b में डाला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा ओके आई नो दैट इट्स इन द रेंज ऑफ बाइट, सो ट्रीट इट एज अ बाइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सप्लिसिट कास्ट। हम एक्सप्लिसिटली लगा के बाइट लगा के बता रहे हैं कि तुम इसको कास्ट कर लो, इसमें कन्वर्ट कर लो, इसमें नो मैटर व्हाट जो होगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए, स्पेलिंग होगी आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। सो यू आर एश्योरिंग द कंपाइलर दैट देयर इज नथिंग टू वरी, आई एम देयर, ठीक है। इम्प्लिसिट कास्ट और एक्सप्लिसिट कास्ट समझ गए।
अब यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़े कि मतलब ये सारे जो कोड, कंट्रोल एक्स में एक बार कर देता हूँ इसको यहाँ पर, और वापस से पुराना कोड लाता हूँ इसका जो एरर के साथ आ गया था, है ना। गेट कन्वीनियंस फी, गेट स्पेशलाइजेशन फी, ये कहाँ थी? ये सारी थी चाइल्ड क्लास में। तो जब हमने सी फी पर चलाया और सी फी को फी टाइप का बना दिया, तो ये दोनों मेथड्स मुझे एरर देने लगे कि गेट स्पेशलाइजेशन फी एंड गेट कन्वीनियंस फी इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप फी बिकॉज दे आर डिफाइंड फॉर द टाइप कंसल्टेशन फी, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि हम सिर्फ वो मेथड यूज करें जो पेरेंट क्लास के अंदर है। अगर उससे हमारा काम चल जाए तो ठीक है। कई बार सिचुएशन आएगी जब काम हमारा चल जाएगा, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कई चीजों में दिखाऊंगा, ठीक है। और जब हमारा काम ना चल रहा हो तब हम उसको चाहे तो कास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस टाइम आई नो दैट दिस फी इज कमिंग टू बी अ कंसल्टेशन फी। आप एक फॉर लूप लगा के इंस्टेंस ऑफ से चेक भी कर सकते हैं कि किसका इंस्टेंस एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, राइट। तो आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट इट्स अ कंसल्टेशन फी, so I will say that सी को मैं यहां से लेकर के यहां तक डाल रहा हूं, इसके ठीक आगे डाल रहा हूं कंसल्टेशन फी, ठीक है। और इस पूरी चीज को उठा करके मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, यहां से यहां तक। देखिए एरर गई इसमें, इस लाइन में कन्वीनियंस फी में गई एरर, कन्वीनियंस फी की एरर गई ना। क्या किया मैंने, अभी तक सी पर कन्वीनियंस फी आ रहा था तो कंपाइलर मुझे कंप्लेंट कर रहा था कि जो सी है वो फी टाइप का क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और फी क्लास के अंदर गेट कन्वीनियंस फी मेथड डिफाइंड नहीं है ना। वो एक्सटेंशन में था, यानी कंसल्टेशन फी में था। तो हमने क्या करा, सी को ब्रैकेट में डाल के उसके पहले ब्रैकेट में क्या लगाया, कंसल्टेशन फी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ब्रैकेट ना भी लगाए तो भी चल जाएगा, ये वाला ब्रैकेट जो है, ठीक है। यानी इसके पहले ब्रैकेट में हमने कंसल्टेशन फी लगा दिया और हमने बताया कि सी को तुम कंसल्टेशन फी में एक्सप्लिसिटली कास्ट कर लो। और जब ये पूरा का पूरा कास्ट हो गया तब हमने ब्रैकेट में पूरा डाल के फिर उसके बाद गेट कन्वीनियंस फी कॉल किया। नाउ देन आई एम कॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसल्टेशन फी, द चाइल्ड क्लास। एक्सप्लिसिटली कास्ट करा, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास में हम कॉल कर रहे हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ फिलहाल? नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्यों हुआ? लैब में हो जाएगा, अभी पूछना हो तो पूछ लो भाई, क्या मतलब है, फिर से बताऊं? थोड़ा सा लेट आए हो तुम, है ना। कोई बात नहीं। देखो वापस से मैं ये सब बता रहा हूँ। अभी ये बात समझ में आ रही है कितने लोगों को कि भाई सी के ऊपर जो दो मेथड हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके नीचे कंपाइलेशन एरर नहीं शो कर रहा है, वो क्यों नहीं शो कर रहा है, और दो जो मेथड्स है जिनके नीचे कंपाइलेशन एरर शो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? ये समझ में आ रही है? कितने लोग को समझ में आ रही है? बाकी लोग, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? बाकी लोग तो लेट भी आए, उनका मैं क्या बोलूं। देखो भाई, जो फी क्लास हमने बनाई थी उसके अंदर गेट रिसीप्ट नंबर मेथड है और गेट फी अमाउंट मेथड है फी क्लास के अंदर। देयर आर टू क्लासेस, देयर इज अ फी क्लास, ध्यान से सुनो, देयर आर टू क्लासेस, देयर इज अ फी क्लास एंड देयर इज अ कंसल्टेशन फी क्लास। The consultation fee class extends fee class. That means the fee class is the parent class and the consultation fee class is the child class. Now the parent class fee class has got these two methods, get fee amount and get fee taxes, ठीक है, as a generalized method. Whereas get convenience fee and get specialization fee are the methods which are available in the consultation fee, the child class, right? दो मेथड सी क्लास में है जिनमें एरर नहीं दिखा रहा है, कंपाइलेशन एरर। दो मेथड चाइल्ड क्लास में है जिनमें कंपाइलेशन की एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? क्योंकि हमने ये जो पैरामीटर का टाइप है ये पेरेंट क्लास का ले रखा है, फी का ले रखा है, राइट।
तो जब पेरेंट क्लास के टाइप का रेफरेंस वेरिएबल ले रखा है तो जाहिर सी बात है उसको क्या पता कि चाइल्ड क्लास का कौन सा ऑब्जेक्ट रन टाइम में आएगा. इट कुड बी कंसल्टेशन फी, इट कुड बी अ रजिस्ट्रेशन फी, इट कुड बी से फॉर एग्जांपल मेडिकल टेस्ट फी, व्हाटएवर. ठीक है, तो उसको तो नहीं पता ना. तो जाहिर सी बात है कंपाइलर आपको इस फी क्लास रेफरेंस वेरिएबल की टाइप यानी फी को देख करके सिर्फ उतना ही मेथड कॉल करने देगा जो फी क्लास के अंदर अवेलेबल है. वही कंपाइलर कर रहा है. जो उसको फी क्लास के अंदर मेथड नहीं मिल रहे हैं उनके लिए कंपाइलेशन में एरर दे रहा है कि ये मेथड अनडिफाइंड है फी के लिए. मेक सेंस? कैसे हम अलाउ कर दें, राइट? ठीक है. एंड व्हाई वी डिड दिस? बिकॉज वी वांटेड टू मेक अ मेथड that can take all kinds of fee instead of writing several separate methods. And every time we add a new subclass, we will have to break this code. We have to open this code, write a new method, go through the compilation and testing phase and everything. And that is the worst thing we want to do. The last thing, right? तो हम चाहते हैं ये कोड हमारा ब्रेक ना हो, हम नए क्लासेस ऐड करते जाए एज अ चाइल्ड क्लास, इस क्लास पे कोई असर ना हो. तो वन सॉल्यूशन इज, अगर हमारा काम इन दोनों मेथड्स को जो स्पेशलाइजेशन के मेथड्स हैं या एक्सटेंशन के मेथड हैं इनको यूज किए बिना चल जा रहा है, वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन सबको बहुत शॉर्टली में दिखाऊंगा मे बी इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां पे हमें जैसे टोटल फी कैलकुलेट करना है, वहां पे तो हमें दोनों चीजें चाहिए ना. चाइल्ड क्लास से भी चाहिए मेथड्स, उनके स्पेसिफिक फील्ड्स की फीस की, और पेरेंट क्लास से भी चाहिए. तब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि ये जो मेथड हम कॉल कर रहे हैं ये एक्चुअली फी क्लास समझ के तुम इसको कॉल मत करो. ये जान लो कि ये कंसल्टेशन फी है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ डेवलपर लेता हूँ, और इसको कंसल्टेशन फी का ऑब्जेक्ट मान के तुम उस पर कॉल करो. जब कंसल्टेशन फी का ऑब्जेक्ट मान लेगा तो उसकी सारे मेथड को भी एक्सेस कर लेगा. करेक्ट. अगर मैं बोल दूं कि भाई जो ऑब्जेक्ट आने वाला है फी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर वो कंसल्टेशन फी क्लास का ही आएगा, आई नो दैट. ठीक है, तब तो कंपाइलर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर तो उसके मेथड को भी कॉल कर लेगा, कंपाइलर को एश्योरिटी मिल जाएगी ना. गाइस, ये सब कुछ जो हो रहा है कंपाइलेशन टाइम पे हो रहा है, रन टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा है प्रोग्राम आपका. ठीक है, ये कंपाइलेशन टाइम पे हो रहा है. तो आई एम गिविंग द एश्योरेंस थ्रू एक्सप्लिसिट कास्ट. मैं क्या कह रहा हूं, ये जो फी रेफरेंस वेरिएबल है ये एक्चुअली फी का रेफरेंस वेरिएबल नहीं है. ये इन रियलिटी रन टाइम पे जब तुमको मिलेगा तो वो कंसल्टेशन फी का मिलेगा, कंसल्टेशन फी का मिलेगा. और जब तुम्हें कंसल्टेशन फी का मिल जाए तो इस पूरे को उठा के मैं एक ब्रैकेट में डाल रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा क्या मिला, कंसल्टेशन फी का ऑब्जेक्ट मिल गया. तब उस पर गेट कन्वीनियंस फी कॉल कर लो. अब तो कॉल हो सकता है. क्लियर हुआ लाल? गाइस, सेम गोज हियर आल्सो. इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा. एरर गई, हैवी तो नहीं हो गया? कंसल्टेशन फी क्या है? अच्छा चलो फिर से बताता हूँ. देखो फी क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है. ठीक है, फी क्लास पेरेंट क्लास है. फी क्लास का अगर तुम मेथड देखो तो इसमें गेटर जो हैं जिनसे हम रीड कर सकते हैं, कौन कौन से फी से रिलेटेड गेटर्स हैं जो फी के अमाउंट को रीड करेंगे? गेटर्स, गेट फी अमाउंट एंड गेट टैक्सेस, दो फी का कंपोनेंट होगा, राइट? फी अमाउंट मतलब बेस फी अमाउंट, और टैक्सेस. ठीक है. अब देखो तुम कंसल्टेशन फी जो क्लास है इसको देखो. कंसल्टेशन फी क्लास में स्पेशलाइजेशन फी और कन्वीनियंस फी हमने और ऐड कर दी है. यानी पेरेंट क्लास में गेट फी और गेट टैक्सेस था, और चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होकर गेट फी और गेट टैक्सेस तो आया है, साथ में कन्वीनियंस फीस, गेट कन्वीनियंस फीस एंड गेट स्पेशलाइजेशन फीस ऐड हो गया है एज ए एक्सटेंशन चाइल्ड क्लास के अंदर. क्लियर? पेरेंट क्लास में दो था, चाइल्ड क्लास में कितने गेटर मेथड है फी के रिलेटेड? 4. दो पेरेंट क्लास से आ रहे हैं, दो उसके अपने हैं, दो वो भी तो आ रहे हैं ना, 4 है, दो उसके हैं, दो पेरेंट क्लास से आ रहे हैं, राइट?
तो जब हमने ये एक मेथड ऐसा बनाया, इससे पहले मैंने ये आपको दिखाया था, अगर आप देर से आए हैं तो आप ये देख लीजिए पहले, फी कंसल्टेशन फी इज इक्वल टू न्यू फी। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, फी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कंसल्टेशन फी रेफरेंस वेरिएबल है, फी टाइप का रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी हम किसका बना रहे हैं, फी का बना रहे हैं। दूसरी लाइन में कंसल्टेशन फी का रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी किसका बना रहे हैं, कंसल्टेशन फी का बना रहे हैं। तीसरे में हम थोड़ा सा डायनेमिक बिहेवियर ऐड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो रेफरेंस वेरिएबल है वो तो फी टाइप का है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो रन टाइम पे आएगा वो कंसल्टेशन फी यानी चाइल्ड का आएगा। अगर कोई और चाइल्ड होता है तो उसका भी हम बना सकते थे, हम कह सकते थे फी कंसल्टेशन फी 3 इज इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन फी फॉर एग्जांपल, ऐसा कह सकते थे, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फी एक्सटेंड्स द फी। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब एक रूल सेट हो गया कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल जो है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को होल्ड कर सकता है, राइट? करेक्ट। फिर हम आए इस प्रॉब्लम पे कि अगर हम ऐसा कोई मेथड लिखे फी रिकॉर्ड क्लास के अंदर which needs to print all fee amount for the day, है ना? So we started making this method not by fee class as a parameter type, but rather consultation fee as a parameter type. जब कंसल्टेशन फी था तो कंसल्टेशन फी के रेफरेंस वेरिएबल पे सारे के सारे जो मेथड थे ये ऑटोमेटिकली चल रहे थे आपके। सॉरी, फिर से मुझे रिवर्ट करना पड़ रहा है थोड़ा सा। क्या कह रहा है ये सी सी एच? क्या गड़बड़ हो गया भाई? क्या? अच्छा ये, ठीक है। पहले हमने जो मेथड बनाया था ये बनाया था कंसल्टेशन फी को यूज करके कि भाई कंसल्टेशन फी जो दिन भर में हमें कलेक्ट हुए हैं वो सारे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप देखिए हमने सारे मेथड यूज करे, गेट रिसिप्ट नंबर जो कि फी का मेथड है, गेट फी अमाउंट द बेस फी अमाउंट विच इज अगेन द मेथड ऑफ फी, गेट टैक्सेस विच इज अगेन द मेथड ऑफ फी, ठीक है, इनहेरिट टू कंसल्टेशन फी, राइट। और फिर कंसल्टेशन फी के स्पेशलाइज मेथड को भी मैंने यूज किया, यानी एक्सटेंशन को भी यूज करा, राइट, गेट कन्वीनियंस फी एंड गेट स्पेशलाइजेशन फी। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर थी, यहां तक क्लियर थी। लेकिन जब हम नए नए क्लासेस ऐड करते जाएंगे, से रजिस्ट्रेशन फी से ट्रीटमेंट फी, राइट, से फॉर एग्जांपल इन पेशेंट फी, एडमिशन का चार्जेस, मेडिकल टेस्ट फी, तो सारे जो चाइल्ड क्लासेस होंगे सारे के सारे फी क्लास को एक्सटेंड करेंगे। इसका मतलब सबके लिए ऐसे ऐसे सेपरेट मेथड हमको बनाने पड़ेंगे, है ना, और सबको लाइन से एक एक करके कॉल करना पड़ेगा। तो यानी कि जब भी हम नया क्लास बनाएंगे फ्यूचर में विच इज द चाइल्ड क्लास ऑफ द फी क्लास, तो एक तो हमें इस कोड को ब्रेक करना पड़ेगा फी रिकॉर्ड क्लास को, जिसका ये मेथड ब्रेक करना पड़ेगा नया मेथड ऐड करने के लिए। दूसरी बात, जहां से हम इसको कॉल कर रहे होंगे फी रिकॉर्ड के प्रिंट ऑल फी अमाउंट ऑफ फॉर द डे, राइट, उस जगह से हमको कॉल में भी नया मेथड एक दिखाना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप, राइट। तो मल्टीपल जगह से कोड आपका ब्रेक हो रहा है ना, कोड ब्रेक करना यानी कोड को चेंज करना, दिस इज समथिंग विच इज वी वांट टू अवॉइड, ठीक है, वी डू नॉट वांट टू ब्रेक द कोड, क्योंकि रिकंपाइलेशन होगा, रीटेस्टिंग होगी, सब एक नया कहानी शुरू हो जाएगी उसमें, कई जगह से फिर फर्दर कोड ब्रेक करने लगेगा डिपेंडेंसीज की वजह से, है ना। एक लार्ज एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने कहा कि हम इस झंझट को खत्म करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई हमें पता है कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के सारे ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकता है, तो हमने यह जो रेफरेंस वेरिएबल डाला वो पेरेंट क्लास का ही डाल दिया। अब चाहे वो कंसल्टेशन फी आए, राइट, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फी आए, चाहे वो कोई सी भी फी आए,
वो सबके ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लेगा और सारे मेथड इस पे काम करेंगे विद अ लिमिटेशन कि अब हम उतने ही मेथड कॉल कर पाएंगे जो पेरेंट क्लास सी के अंदर डिफाइंड है, क्योंकि अब हमें कंपाइलर को नहीं पता कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट आने वाला है। उसके अंदर वो जनरलाइज मेथड सबके अंदर होगा, स्पेशलाइज मेथड है कि नहीं है, नहीं पता है। तो कहानी ये बन के आती है कि अगर हमारा काम किसी तरह से सिर्फ पेरेंट क्लास के मेथड्स को यानी जनरलाइज मेथड को कॉल करके हो जाता है, तब तो दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज अ परफेक्ट कोड। ठीक है, ऐसी सिचुएशन मैं दिखाऊंगा आपको, इट इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, इट इज क्वाइट नॉर्मल, है ना? ठीक है, बट इफ इन केस दैट डजंट हैपेंस इन सर्टेन थिंग्स, then what we can do is we can only allow the extension methods or the child class methods to be called by adding a explicit cast to it। ठीक है, एक्सप्लिसिट क्लास का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं ये सी जो रेफरेंस वेरिएबल तुम देख रहे हो ये सी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। मैं कंपाइलर से कह रहा हूं कि नहीं भाई, मुझे पता है कि रन टाइम में तुम्हें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कंसल्टेशन फी मिलने वाला है, और जब तुम्हें कंसल्टेशन फी मिल जाए तो इस पूरे को मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं, तब उसके बाद तुम गेट कन्वीनियंस फी को कॉल कर देना, क्योंकि अब तुम्हें कंसल्टेशन फी का ऑब्जेक्ट मिला है, गेट कन्वीनियंस फी कंसल्टेशन फी के अंदर है, चाइल्ड क्लास के अंदर है। तो कंपाइलेशन एरर की चली गई मेरी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सप्लिसिट कास्ट। क्लियर हो गया? सेम थिंग आई विल हैव टू रिपीट फॉर द अदर मेथड आल्सो बिकॉज दैट मेथड आल्सो बिलोंग टू द चाइल्ड क्लास। चला गया? सिंपलर एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी जितना समझ में आया है समझ में आया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग शायद नहीं समझ पाए होंगे अभी भी, तो एक सिंपल एग्जांपल लेके नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आपका सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो ये बात नहीं समझ में आएगी, किसी भी कीमत पे समझ में नहीं आएगी। अगर सी प्लस प्लस आपने अच्छे से पढ़ भी रखा है तो शायद ये चीजें आपके लिए, ये सारी चीजें सी प्लस प्लस एप्लीकेबल है, ये मत समझना कि वहां नहीं एप्लीकेबल है, सी शार्प पे भी एप्लीकेबल है, सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेंगी आपको। लेकिन अगर ये चीजें वहां यूज नहीं करी हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए नहीं लगेंगी और डिफिकल्ट भी लगेंगी, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है ना? ये हम उन डायरेक्शन में जा रहे हैं कि व्हाई वी हैड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट फर्स्ट प्लेस। प्रोसीजर लैंग्वेज सब कुछ कर सकता था ना भाई। प्रोसीजर लैंग्वेज मॉडुलर था कि नहीं मॉडुलर था? प्रोसीजर लैंग्वेज मॉडुलर था कि नहीं मॉडुलर था? कितने लोग हाँ कह रहे हैं, कितने लोग नहीं कहेंगे? Guys, raise your hand. How many people say that procedural language is non-modular? अच्छा, how many says procedural language is modular? तो एक तो हाथ वो है जो कह रहे मॉडुलर है। नॉन मॉडुलर में जिन किसी ने हाथ नहीं उठाया था, और अभी भी कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया है। इसका मतलब कुछ लोग कंफ्यूज है कि मॉडुलर नॉन मॉडुलर का मतलब क्या होता है। भाई मॉडुलर का मतलब, मॉड्यूल का मतलब समझ रहे हो ना? एक एक किसी एक ग्रुप कर सके आप किसी चीज को, उसको बोलते हैं मॉड्यूल बनाना। तो फंक्शन इज अ मॉड्यूल, राइट? तो जहां फंक्शन आ गया वो ऑलरेडी मॉडुलर है वो लैंग्वेज। ठीक है, जहां मॉडुलर आ गया वहां यूजिबिलिटी भी है टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने इस यूजिबिलिटी के कंसेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया, राइट? दैट इज व्हाई वी हैड दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वरना जरूरत ही क्या थी इसकी? एक ही प्रोग्राम आप शुरू करते हैं, मेन फंक्शन से शुरू करते हैं, उसके अंदर फंक्शन टू फंक्शन नेस्टेड पूरा ट्री स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हैं एंड यू गेट लॉस्ट। ठीक है, जहां थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस बनाने की जरूरत पड़ सकती है एक बड़े एप्लीकेशन में, तो वहां पे आप सोचिए कि मतलब क्या हाल होगी अगर आप एक सी लैंग्वेज जैसे स्पेशल लैंग्वेज में लिखना शुरू करें, है ना? आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी चीज, मेंटेन हो ही नहीं सकती। फिर अल्टीमेटली जब कोड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट जाएगा, कोड को स्क्रैप करना पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस उसका अब ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा देन द रीडेवलपमेंट इटसेल्फ, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कॉस्टिंग होती है ना। So we are getting into the reasons why we ultimately move to object oriented programming language at the last. ठीक है, यहाँ पे रोके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसी एग्जांपल को एक सिंपल एग्जांपल से फिर समझेंगे ताकि बाकी लोग भी समझ जाए, देन वी मूव फर्दर। सो डोंट वरी।